لا 5 لوگوں کی خواہش بنے۔ شدید خواہش کا قانون۔ کسی انسان یا چیز کی موجودگی اور عدم موجودگی کے ہم پر اہم اثرات ہوتے ہیں۔ کسی کی ہمہ وقت موجودگی سے دم گھٹنے لگتا ہے اور اس کی عدم موجودگی سے دلچسپی بڑھتی ہے۔ انسانی نفسیات کے مطابق انسان میں سے اس چیز کی خواہش مسلسل زندہ رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ چیز اس کے خیالات کا محور بن جاتی ہے۔ اپنے گرد اسرار کا ایک حالہ پیدا کرنا سیکھیں۔ اپنی سوچی سمجھی عدم موجودگی کو اسی طرح استعمال کریں کہ لوگ آپ کی موجودگی چاہیں۔ لوگوں کے سامنے اس شخص کا روپ اختیار کریں جس کی وہ اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتے ہیں، جس کا حصول ان کے لیے مشکل ہے۔ اس طرح آپ کے حصول یا موجودگی کی خواہش ان کا جنون بن جائے گی۔ یاد رکھیں کہ دوری پر موجود گھاس ہمیشہ زیادہ ہری نظر آتی ہے۔ انسان فطرتاً اپنے حالات پر قانع نہیں ہوتا۔ کسی عجیب فطری مظہر کی بنا پر جیسے ہی ہم کوئی پسندیدہ چیز حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے اگلے ہی لمحے ہم اس سے کسی بہتر اور مختلف چیز کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نئی چیز جتنی دور اور ناقابل حصول لگتی ہو اتنی ہی ہماری خواہش شدید ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دور کی گھاس زیادہ ہری دکھتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اور جب ہم اپنی اس نئی منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھاس بھی ویسی ہی ہے یا اتنی ہری نہیں جتنی پہلے دکھتی تھی۔ اس کیفیت کو انسانی دماغ کی 3 خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی خاصیت کو انڈکشن یعنی استقراء کہا جاتا ہے کہ کیسے کوئی پازیٹیو چیز ہمارے ذہن میں ایک منفی یا الٹ تصور بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مخفی طور پر اس کے برعکس یا متضاد چیز کا تصور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہماری روایات، مذہب یا ثقافت میں جس چیز کا حصول یا اس کے بارے میں سوچنا بھی ممنوع ہوتا ہے، ہمارے اندر اسی چیز کی خواہش ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو جب کسی چیز سے منع کیا جائے یا مت کرو کا حکم دیا جائے، اس لمحے ذہن میں کرو کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں ان 2 متضاد خواہشات کے درمیان کشمکش کو نہیں روک سکتے۔ اس طریقے سے ہمارے ذہن میں اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ارد گرد سے لاپرواہی انسانوں کے لیے ایک خطرناک ارتقائی خاصیت ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد اپنے ماحول اور حالات پر قانع ہوتے تو انہیں ان خطروں کا احساس ہی نہ ہوتا جو اس بظاہر محفوظ ماحول میں مخفی طور پر ان کے لیے گھات میں تھے۔ اگرچہ اب ہم ان وسیع علاقوں میں نہیں رہتے جو جان لیوا اور اندیکھے خطرات اور گھنے جنگلات سے بھرپور تھے، لیکن ہمارے دماغوں کی ساخت اب بھی وہی ہے۔ اس لیے ہمارے دماغوں میں ابھی تک یہ منفی تعصب موجود ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے پائے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہمارا دماغ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ کوئی چیز چاہے حقیقت میں مادی وجود رکھتی ہے یا صرف ہمارا تخیل ہے۔ ذہنی اور جسمانی کیفیت مندرجہ دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت کئی افراد پر کیے گئے تجربے سے ثابت کی جا چکی ہے کہ کسی حقیقی چیز اور تخیلیاتی چیز کی صورت میں دماغ میں پیدا ہونے والا برقی اور کیمیائی رد عمل ایک جیسا تھا، اور یہ سب کچھ fMRI کے ذریعے واضح ہو چکا ہے۔ حقیقت انتہائی تلخ، سخت اور محدود ہوتی ہے، لیکن اپنے تخیل میں ہم ان حدود سے آزاد ہوتے ہیں اور تمام ممکنات ہمارے بس میں ہوتے ہیں۔ ہمارا تخیل لامحدود ہوتا ہے، اور جس چیز کا ہم تخیل کرتے ہیں اس کا بھی ہمارے ذہن پر حقیقت جتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ اس طرح ہم وہ مخلوق بن جاتے ہیں جن کا جھکاؤ ہمیشہ ہمارے پاس موجود چیز سے کچھ بہتر کے تخیل کی طرف ہوتا ہے، اور اس طرح
हम हकीकत से छुटकारा पाकर इस एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जो हमारा तख़ील हमें फ़राहम करता है। यही सब कुछ हमारे अंदर धूड़ की घास हमेशा ज़्यादा हरी दिखती है वाली कैफियत पैदा करता है। हमें इस बशरी कमी या नक्स को अखलाकियात की नज़र से देखकर इसके बारे में मनफी राय काम नहीं करनी चाहिए। ये हम सब के ज़हन का एक हिस्सा है और इसके कई फ़वाइद हैं। ये हमारे लिए नत नई इख्तियारात का ज़रिया है। इसने इंसान के तख़ील को एक ताकत व हथियार में डाल दिया है और यही पहलू है जिसके ज़रिए हम दूसरे इंसानों को तरगीब दे सकते हैं या इनमें ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। लोगों के अंदर ख्वाहिश, लालच या जुनून पैदा करने का फ़न एक दायमी इल्म है जिसे हम दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमें जिस मसले का सामना है वो ये नहीं है कि लोगों में ख्वाहिश या हसरत नहीं पाई जाती, बल्कि ये है कि हमें इस फ़न की ताकत व अहमियत का इल्म नहीं है। हमें ज़ाती तल्लुकात या रिश्तों में इसका सबूत मिलता है। अब ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन करने लग गए हैं कि लोग इनको इनकी हकीकत, खूबियों और ख़ामियों के साथ कबूल करें। इसका मतलब ये है कि लोग खुद को दूसरों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खोल कर रख देते हैं। अपनी हर पसंद नापसंद और अपनी हर अच्छी बुरी बात या आदत आया कर देते हैं। वो इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि लोग इनके बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश करें या तसव्वुर करें। और जब दूसरा शख्स इनमें दिलचस्पी लेना छोड़ देता है तो फिर मर्दों की हर जायत या औरतों की बदकिरदारी का रोना रोया जाता है। हो सकता है लोग इस बात से ये मतलब लें कि हम इंसान ज़्यादा ईमानदार और सच्चे होते जा रहे हैं, लेकिन इंसानी फितरत या साख्त सिर्फ चंद नस्लों के गुजरने से तब्दील नहीं हुआ करती। लोग ज़्यादा खुले और रास्तगो किसी इखलाकी तब्दीली की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा खुद इत्मादी या अनापरस्ती की वजह से होते हैं। आप जैसा हैं वैसा ही दूसरों को इसलिए दिखाते हैं कि इसके लिए किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस कोशिश की कमी का नतीजा लोगों पर हमारे असर की कमी में नज़र आता है। जब लोग आपको मुकम्मल तौर पर जान लेंगे तो फितरी तौर पर आप में इनकी दिलचस्पी बहुत कम रह जाएगी और आप इसकी वजह ढूंढते रह जाएंगे। आजकल की नाम नहाद ईमानदारी पर यकीन करते हुए लोगों में अपने बारे में तजस्सुस या ख्वाहिश कम मत होने दें। दुनिया में ऐसे लोग ना होने के बराबर हैं जो लोगों के दिलों में अपनी ख्वाहिश या चाहत पैदा करने का फ़न जानते हैं। ऐसी सूरत में आपके लिए ज़्यादा मौका है कि आप लोगों की ख्वाहिश का मरकज़ बन जाएं। दुरुस्त वक्त और तरीके से कदम पीछे हटाइए। ये इस फ़न का निचोड़ है। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हुए इससे मतलब अख्ज़ करते हैं। अगर आपकी मौजूदगी का मतलब वाज़िया है और लोग आसानी से आपको जान जाते हैं, या अगर आप बहुत वाज़िया तौर पर अपनी ज़रूरत का इजहार कर देते हैं, तो लोग लाशऊरी तौर पर आपको कम अहमियत देना शुरू कर देंगे और आप में दिलचस्पी खो देंगे। आपकी मौजूदगी में एक इस तरह की बेनियाज़ी या सर्द महरी होनी चाहिए जिससे ये लगे कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इससे लोगों को ये इशारा मिलता है कि आप खुद को काबिल इज़्ज़त और हम तसव्वुर करते हैं, जिससे इनकी नज़र में आपकी अहमियत बढ़ जाती है। इससे लोग आपकी ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं। बेनियाज़ी या सर्द मोहरी का ये इजहार कदम पीछे हटाने की पहली सूरत है जिसकी आपको मशक करनी चाहिए। इसके साथ अपनी शख्सियत के बारे में एक इस तरह का इबहाम पैदा करें जिससे दूसरों को लगे कि वो आपको मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। आपकी आरा, इक़दार और ज़ौक़ लोगों पर पूरी तरह कभी वाज़िया नहीं होना चाहिए। इससे इनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो आप में अपनी पसंद को तलाश करें। सादा अल्फाज में आपको अपने बारे में एक इसरार की फ़िज़ा कायम करनी है जिसका लोग मतलब अख्ज़ करने की कोशिश करें। जब आपको महसूस हो कि आप लोगों की तवज्जो हासिल कर चुके हैं या इन्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर चुके हैं,
तो फिर इस वक्त आपको गैर मौजूदगी की कोशिश करनी चाहिए। आपको हर वक्त हर किसी के लिए मुहैया या मौजूद नहीं होना चाहिए। आपके बगैर एक आध दिन या हफ्ता गुजर जाएगा। आप अपने अदम मौजूदगी से इनके अंदर एक खला का एहसास पैदा कर दें और इस अदम मौजूदगी में आप इनके जहन में ज़्यादा जगह हासिल कर लेते हैं। वो आपके ज़रूरत और ज़्यादा महसूस करते हैं। आप जो काम करते हैं इसके बारे में भी ऐसी ही ख्वाहिश या चाहत पैदा कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन और पैगाम को इस तरह तख्लीक करें कि इसके बहुत से मतलब अख्ज़ हो सकते हों। कभी हतमा तौर पर बयान न करें कि वो आपके काम से क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पैगाम इस तरह तरतीब दें जिससे लोगों को लगे कि जितना आपने कहा इससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इस बात को जहन में बिठाने के हमारा तख़ील जितना फ़ाल होता है, हम इससे इतनी ही ज़्यादा खुशी हासिल करते हैं। जब हम कोई तजर्दीदी तस्वीर देखते हैं जो हमारे तसव्वुर को महमीस करती है, कोई ऐसी फ़िल्म देखते हैं जिसे समझना आसान ना हो, कोई लतीफ़ा या तशहीर देखते हैं और सुनते हैं जो मुबहम हो, तो हम इसका मतलब अख्ज़ करने की कोशिश करते हैं और हमें इस काम में लज्जत और खुशी महसूस होती है। अपने काम के बारे में आप लोगों को यही खुशी और लज्जत हासिल करने का मौका दें। एहसास से रकाबत का फ़ायदा उठाएं। इंसानी ख्वाहिशात सिर्फ़ इनफरादी चाहत की बुनियाद पर नहीं होती। हम इंसान समाजी हैवान हैं और हमें अक्सर इन्हीं चीज़ों की चाहत होती है जिनके बारे में हमें महसूस हो कि इन्हें दूसरे लोग भी चाहते हैं। इस रकाबत का तल्लुक़ हमारी इब्तदाई उम्र से होता है। बचपन में हमें अपने माँ बाप की तवज्जो और शफ़क़त की ख्वाहिश होती है, और अगर हमारे बहन भाइयों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही हो तो हमें लगता है कि इससे हमारे लिए वालिदैन की तवज्जो और शफ़क़त में कमी हो जाएगी। तब हमें तवज्जो हासिल करने के लिए अपने बहन भाइयों से मुकाबला करना पड़ता है। जब हम अपने बहन भाइयों को कोई तोहफ़ा या ख़ास एज़ाज़ हासिल करते देखते हैं तो हमारे अंदर मुकाबले की ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें भी यही कुछ मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ या शख्स ऐसा हो कि जिसको कोई ना कोई चाहता हो, अगर कोई चीज़ या शख्स ऐसा हो कि जिसको कोई ना चाहता हो, तो हमारे अंदर भी इसके लिए एक बेनियाज़ी और बेकदरी का एहसास पैदा हो जाता है और ये हमारी पूरी ज़िंदगी का तरीका बन जाता है। अपने रिश्तों में इंसान आम तौर पर इस मर्द या औरत की ख्वाहिश करते हैं जिसके बारे में लोगों को इल्म हो जाए कि इसे पहले फ़लाँ ने हासिल करने की कोशिश की है। लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि किसी दूसरे की चाहत को हासिल कर लिया जाए और इसे नीचा दिखाया जाए। ये इंसान की बचपन से इसके लाशौर में पियुस्त सोच है। अगर कोई शख्स किसी नई तकनीक से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो दूसरे लोग न सिर्फ इसमें हिस्सेदार बनना चाहेंगे बल्कि मार्केट पर कब्ज़ा करना चाहेंगे। जब लोग दूसरों के पास कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे खुशी और लुत्फ़ हासिल होता है तो वो इस तजर्बे में भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। जब हम ऐसी चीज़ या लोग देखते हैं जिन्हें दूसरे चाहते हैं तो इससे हमारे दिल में भी इस चीज़ या शख्स के हसूल की ख्वाहिश पैदा होती है। आपको सीखना चाहिए कि इस इंसानी कमज़ोरी से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आप किसी तरह से ये तासर पैदा कर दें कि दूसरे लोग भी आपकी या आपके काम की ख्वाहिश रखते हैं तो आप बग़ैर कोई लफ्ज़ कहे या ख़ुद को दूसरों पर मुसल्लत किए बग़ैर लोगों में अपनी चाहत या ज़रूरत पैदा कर सकते हैं। वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको अपने गिर्द एक ऐसा ही समाजी हाला या फिर झूठा सच्चा तासर तख्लीक करना चाहिए। आप कई तरीक़ों से यह तासर पैदा कर सकते हैं। मसलन आप कुछ ऐसा करें कि आपके प्रोडक्ट या शख्स की हर तरफ बात हो, और अगर ज़रूरी हो तो नकल की भी हौसला अफजाई करें। इससे भी असल की कदर व कीमत में इजाफ़ा होता है। आप बराह रास्त मुदाखलत मत करें, इससे भी शोहरत का फैलना
नागज़ीर हो जाएगा। आप मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में अफवाहें या कहानियाँ भी फैला सकते हैं। लोग इस बारे में बात करना शुरू कर देंगे और बात फैल जाएगी, हत्ता कि मनफी तबसरे और तनाज़ात बाज़ औक़ात तारीफ़ से ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इससे आपको या आपकी चीज़ को दूसरों पर बरतरी हासिल हो जाएगी, क्योंकि लोग फितरतन मनफी चीज़ों की तरफ खींचते हैं। आपकी खामोशी या वाज़िया जवाब न देने से लोग खुद कहानियाँ गढ़ेंगे और नए मतलब अख्ज़ करेंगे। आप इन शौलों को हवा देने के लिए कम अहम लोगों को ममूर भी कर सकते हैं। ऐसे लोग कहेंगे कि जो चीज़ आप पेश कर रहे हैं वो एक ऐसी नई और इनकलाबी चीज़ है जिसके बारे में पहले ना कभी सुना गया और ना देखा गया। इस खेल में मसला सिर्फ ये है कि आज की दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा मुकाबले का सामना है और राय आमा मुसलसल बदलती रहती है। आपको न सिर्फ इस मुसलसल अमल का आगाज़ करने में माहिर होना है, बल्कि वक्त के साथ इसमें इख्तरा भी करते रहना है। एक फ़र्द के तौर पर आपको यकीनी बनाना है कि और लोग भी आपकी ख्वाहिश रखते हैं। आपको ये सब इनडायरेक्टली तरीके से करना है। आपको चाहिए कि लोगों तक अपनी मकबूलियत की कहानियाँ पहुँचाएँ। आपको इन्हें महसूस करवाना है कि आपको दूसरे लोगों की तरफ से कितनी तवज्जो मिलती है, लेकिन ये सब एक भी लफ्ज़ बोले बगैर करना है। किसी तरह की शेखी बगाड़ना जो वाज़िया तौर पर झूठ लगे इस अमल को ज़ायल कर देगा। अगर कहीं भी कोई मज़ाकरात या आपकी खिदमत के लिए भावताओं की नौबत आए तो आप इसमें कोई तीसरी और चौथी पार्टी भी शरीक करें जो आपकी खिदमत के लिए बज़ाहिर मुकाबला करें, लेकिन ये सब कुछ हकीकी ज़ाहिर होना चाहिए। इससे फ़ौरी तौर पर आपकी कदर बढ़ जाएगी, न सिर्फ भावताओं के लिहाज से बल्कि लोग ये भी जान जाएंगे कि दूसरों को भी आपकी ज़रूरत है। क़ियास का इस्तेमाल करें। हो सकता है हमें लगता हो कि हम माजी के मुकाबले में बहुत आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक ऐसी दुनिया में ज़िंदा है जहाँ माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कायदे कानून पर अमल की पाबंदी है। आप जदीद टेक्नोलॉजी या डिजिटल आलात के ज़रिए हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। आजकल पूरी इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा क़वानीन या ज़ाब्ते हैं जो इंसानी रवैयों या बर्ताव को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। सियासी आरा और नज़रियात भी अब सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत हद तक नज़र में होते हैं। दिल ही दिल में सब अपनी तबई और ज़हनी आज़ादी पर लगी इन पाबंदियों का बोझ महसूस करते हैं। हम सब के दिल में वो सब कुछ हासिल करने की ख्वाहिश मुसलसल पंपती रहती है जो इन पाबंदियों और हदूद से मावरा है, और हम लोग आसानी से इस तरकीब का शिकार हो सकते हैं। दूसरों लोगों की निजी ज़िंदगी में झांकना या इसकी कोशिश करना समाजी ज़ाब्तों के लिहाज से बहुत मनफी अमल तस्वर किया जाता है। ताहम हम सब के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद रहती है कि दरवाज़ों के पीछे होने वाली बातें सुन सकें। अगर आप अपनी या दूसरों की ज़िंदगी के ऐसे राज इश्कार करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग शदीद गज़ीज़ व गज़ब का इजहार करें, लेकिन अंदर से वो मुतजस्सिस ज़रूर होंगे, क्योंकि जो चीज़ पहुँच से जितनी बाहर लगती है इतनी ही खूबसूरत हुआ करती है। अगर आप किसी बिल्कुल रवायती और आम सी चीज़ में भी कोई नयापन डाल देते हैं तो लोग इसकी ख्वाहिश में जुनूनी हो जाते हैं। लोग इस तस्वर को बड़ी जल्दी महसूस करते हैं कि जो कुछ इन्हें मिलने वाला है वो नामुमकिन हसूल है। लोग जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत सी तकलीफ़दा पाबंदियों और हदूद से लदी है। कामयाब और अमीर होने के लिए शदीद मेहनत की ज़रूरत होती है। हम में से हर शख्स अपनी फितरत और किरदार में मकीद होता है और कोई दूसरी शख्सियत इख्तियार नहीं कर सकता। ना तो कोई अपनी खोई हुई जवानी वापस ला सकता है और ना ही वो सेहत जो जवानी के साथ जा चुकी होती है। हर गुज़रता दिन हमें मौत से करीब तर कर देता है, जो कि आखिरी अटल हकीकत है। याद रखें कि किसी चीज़ की मलकियत नहीं बल्कि इसकी ख्वाहिश हमें
आगे बढ़ने का हौसला देती है। किसी भी चीज़ के हसूल के साथ ही हमारे अंदर एक तरह की मायूसी उभरती है और एक नई ख्वाहिश पैदा हो जाती है। नत नए ख्वाबों के पीछे भागने की इंसानी ख्वाहिश से फ़ायदा उठाएं। इस सिलसिले में आपकी कोशिशों में नत नई तब्दीली नज़र आनी चाहिए। जैसे ही लोग आप तक रसाई पा लेते हैं या आपको हासिल कर लेते हैं तो आप और आपके इक़दार के लिए इनका एहतराम कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी पीछे हटकर और कभी किसी नई हैरानकुन तब्दीली से लोगों के अंदर अपनी ख्वाहिश ज़िंदा रखें। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे ताकत आपके हाथ में रहेगी। आला तरीन ख्वाहिश। हमें अपनी फितरत के बारे में आगाही हासिल करने का सफ़र मुसलसल जारी रखना चाहिए। हमें मुसलसल इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नत नई ख्वाहिशात के पीछे भागने का जज्बा हमारे अंदर क्या, कैसे और कितना काम करता है और हमें मुसलसल कुछ न कुछ करने पर उकसाता रहता है। ज़रूरत है कि हम इस बात पर गौर करें कि हम जिन ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं इनमें कौन सी कोशिश या ख्वाहिश पॉजिटिव या मुफीद है और कौन सी कोशिश मनफी और नुकसानदाह। इसका मुस्बत पहलू ये है कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है इस पर मुतमय्यन या कान्या ना होना हमें मुसलसल कोशिश और मेहनत पर उकसाता रहता है। इससे हमारे तख़ील में वसअत आती है और हम मज़ीद मुमकानात और इम्कानात पर सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वो अपने हालात पर ज़्यादा से ज़्यादा कनायत करना शुरू हो जाता है और अपने जवानी के दिनों में मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात के पीछे भागने के जज्बे की तजदीद हमें ज़्यादा फ़ाल और जवान रखती है। ताहिम ख्वाहिशात का पीछा करने का अमल हमारी अक्ल व शऊर के काबू में होना चाहिए। अक्सर औक़ात हमारे मौजूदा हालात पर हमारा अदम इत्मीनान सिर्फ़ फितरी या बशरी कमज़ोरी की बुनियाद पर होता है और तब्दीली की हमारी ख्वाहिश सिर्फ़ मौजूदा हालात से उकताहट या बेजारी की वजह से होती है और इससे सिर्फ़ हमारा कीमती वक्त ज़ाया होता है। हम अपनी पेशा वराना ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते, इसलिए बहुत बड़ी तब्दीली देखकर अपना पेशा या शोबा बदल लेते हैं जिसके लिए नई महारतें सीखने और नए रवाबत कायम करने की ज़रूरत होती है। हम इस जिद्दत व तब्दीली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन चंद साल बाद हम दोबारा इसी बेचैनी और बेजारी का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये नया रास्ता भी सही नहीं है। हमें इस बारे में ज़रा ज़्यादा गहराई में सोचना चाहिए। अपने साबका पेशे या शोबे के इन पहलुओं के बारे में सोचें जो हमारे लिए उकताहट का बायस थे और इस लिहाज से इस तरह की तब्दीली लाएं कि हमारे इस पेशे से हमारा तल्लक तोड़े बगैर हमारी महारतों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। अपने रिश्तों में हम सारी ज़िंदगी किसी मुकम्मल इंसान, मर्द या औरत की तलाश में लगे रहते हैं और आखिरकार तन्हा रह जाते हैं। कोई भी मुकम्मल नहीं होता। बेहतर ये है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की खामियों से समझौता कर लें, बल्कि इनकी खामियों में कोई पॉजिटिव पहलू तलाश करें। अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए हम समझौता करना सीख सकते हैं ताकि हम कामयाबी से रिश्ते निभा सकें, जो कि आसान नहीं है। जदीद तरीन रहजनात या फ़ैशन के ताक़ब में मुसलसल भागते रहने और दूसरे लोगों की पैरवी में अपनी ख्वाहिशात को ढालने की बजाय हमें अपने ज़ौक़ और ख्वाहिशात को बेहतर अंदाज में जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि जितनी चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट की जा रही है इनमें से हमारी ज़रूरत की क्या है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इस तरह हमारी तवानाई भी। अपनी ख्वाहिशात के अंधाधुंध पैरवी में हम अपनी बहुत सी तवानाई और कीमती वक्त ज़ाया कर देंगे। आमतौर पर किसी नई और बेहतर चीज़ के इंतज़ार में बैठे रहने की बजाय हमें अपने पास मौजूद अशिया का ही बेहतर से बेहतर इस्तेमाल सीखना चाहिए। इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करें कि आप एक ऐसे माहौल में हैं जो आपके शनासा लोगों पर ही मुश्तमिल है और वही जगह है जहां आप अक्सर आते जाते रहते हैं। ये सब आपकी हकीकत है।
आप इंसानी फितरत की बिना पर आपका ज़हन मुसलसल इस हकीकत से फरार की कोशिश में रहता है। आप नई जगहों पर जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो आप अपना वही मुस्तरब ज़हन और सोच भी वहां लेकर जाएंगे। आप नत नई तफरीहात तलाश करते हैं। आप किताबों का मतालिया करते हैं जिनमें ऐसे आइडियाज़ बयान किए गए हैं जिनका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई तल्लक नहीं, और ख्वाहिशात के पीछे भागने का अमल कभी पूरा नहीं होता और ना कभी ख्वाहिशात की तकमील हो पाती है। इससे सिर्फ मज़ीद ख्वाहिशात पैदा होती हैं और आखिर में आपको इल्म होता है कि आप खुद से नहीं भाग सकते। इसकी बजाय हकीकत आपको बार बार सदा देती है कि दूर तरीन चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अपने नज़दीक की चीज़ों पर तवज्जो दें। इससे आपको एक मुख्तलिफ़ किस्म की राहत मिलेगी। आप अपने हल्का अहबाब में मौजूद लोगों से हमेशा ज़्यादा गहरे रवाबत कायम कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में नहीं जानते। आप इसकी कोशिश करें तो आपको बेइंतहा खुशी मिलेगी। अपने माहौल से जुड़ जाइए। आप जिस जगह रहते हैं इस मकाम की तारीख होगी, वो जानने की कोशिश करें। अपने माहौल को अच्छी तरह जानने से आपके पास मज़ीद असरूर शौक़ हासिल करने की ज़्यादा मौका होगी। आपको खुद अपनी ज़ात में ऐसे बहुत से पहलू मिल सकते हैं जिनसे आप पूरी तरह वाकिफ़ ना हों। खुद को बेहतर तौर पर जानकर आप अपनी फितरत की गुलामी करने की बजाय इस पर हुकूमत कर सकते हैं। आप जो काम भी करते हैं इसमें बेहतरी और इख्तरा की अनगिनत मौका हो सकते हैं। आप अपनी ज़हानत और तख़ील को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो आपके करीब है और हकीकी है। सबसे आखिरी बात यह कि आपने दर हकीकत जिस चीज़ की ख्वाहिश करनी है वो हकीकत का गहरा रिश्ता है जिससे आपको सुकून मिलेगा। आपकी तवज्जो हकीकत पर मरकूज़ होगी और आपको वो सब बदलने की असली ताकत होगी जिसे बदलने की